Hello students, Arshdeep Kaur here. Welcome to my channel. In my previous videos, I have explained about the sums which are related to the frequency, wavelength and speed. And up to practice problem 3 we have done. Okay, that is the sums we have done up to practice problem 3. Okay, now the next is the practice problem 4. Okay, now practice problem 4 of page number 186, the sum chapter. Now in practice problem 4, the first sum is that in the progressive transverse wave of frequency 8 hertz, ठीक है, progressive transverse wave of frequency 8 hertz moves across the surface of a ripple tank. ओके, देन विद फर्स्ट हमने फाइंड क्या करना है कि एक वेव है जिसकी फ्रिक्वेंसी क्या है बेटा 8 हर्ट्स है. इट मीन कि हमें फर्स्ट प्रैक्टिस प्रॉब्लम 4 के फर्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, फ्रिक्वेंसी f इज इक्वल टू 8 हर्ट्स. ए पार्ट का सोल्यूशन लिखना है हमने, ठीक है. 8 पार्ट का सोल्यूशन क्या है, देखो, विद द रेफरेंस ऑफ द फ्रिक्वेंसी के रेफरेंस के साथ, अगर इट मीन कि 8 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी के रेफरेंस के साथ डिस्क्राइब करो द मूवमेंट ऑफ द वाटर ऑन द सरफेस. हमने क्या डिस्क्राइब करना है, मूवमेंट वाटर की ऑन द सरफेस. ओके, नाउ द फ्रिक्वेंसी इज 8 हर्ट्ज. द फ्रिक्वेंसी 8 हर्ट्ज मीन 8 progressive waves, 8 progressive waves. Which waves? ट्रांसवर्स, ठीक है. 8 प्रोग्रेसिव ट्रांसवर्स वेव्स, ओके, मूव्स ओवर द surface of water in 1 second. Why it so? Because we know that frequency mean number of waves in 1 second. Now the B part is, if the wavelength of transverse wave is 32 millimeter, calculate the speed with which the wave travels across the surface of water. तो हमने फाइंड करनी है इसकी स्पीड फाइंड करनी है. इट मीन कि लेट क्या गिवन हो गया, हमें फ्रिक्वेंसी हमारे पास है 8 हर्ट्स. ओके, वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू व्हाट इज 32 मिलीमीटर. ठीक है बेटा, इस मिलीमीटर को हम करेंगे सेंटीमीटर में कन्वर्ट, तो क्या आएगा 1 mm मिलीमीटर is equal to 1/10 centimeter. Therefore 32/10 centimeter is the lambda. Okay, now we know that v velocity is equal to, velocity or speed you can say, is equal to f multiplied by lambda. Now frequency is 8 hertz, hertz mean per second, into lambda is 32/10 centimeter. Then this become 32 into 8 is 256 divided by 10 centimeter per second. Then it become 22.6 centimeter per second is the speed. Okay, this is the first sum. Now second practice problem, given that a thin metal plate, okay, thin metal plate is placed against the teeth of a cogwheel. Okay, the cogwheel is rotated at a speed of 120 rotations per minute. How many rotation? 120 rotation per minute. It means ki number of rotation in 1 minute is 120. And how many teeth are there? 160 teeth are there. Then how can we written it as like this? Number of rotations, or you can say vibrations
in 1 minute is equal to 120. Okay, then number of rotation or vibration in 1 minute is equal to 60 second is equal to 120. then you can say number of rotation vibration in 1 second is equal to 120 upon 60, ये आ गया 6 2, इट मीन की 2, इट मीन की number of rotation in 1 second is equal to 2. now we have 160 teeth, then number of teeth is equal to 160, therefore number of vibrations in 1 second, we call it as frequency, is equal to 2 multiply 160, that is 320 hertz is the frequency. okay, this is the first part. now in B part frequency find कर ली हमने, and then speed of sound find करनी है. wavelength is 1.05 मीटर, wavelength is 1.05 मीटर, फ्रिक्वेंसी हमें गिवन है 320 हर्ट्स, हमने फाइंड करनी है स्पीड वेलोसिटी फाइंड करनी है. नाउ v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, तो जी आएगा हमारे पास 320 पर सेकेंड इंटू 105 अपॉन 100 मीटर. तो 0 से 0 कैंसिल हो कीजिए, इसको सॉल्व करते हैं. 2 5 द 10, ओके, 2 5 द 10, ओके, 5 1 द 5, 5 2 द 10, ये हमारे पास आ गया 16 इंटू 21, तो ये आ गया 336 मीटर पर सेकंड इज द स्पीड. ओके, स्पीड ऑफ अ वेव, इसको मल्टीप्लाई करके ये हमारे पास आएगा. ओके, नेक्स्ट है हमारे पास कहते व्हाट विल बी द इफेक्ट दैट व्हेन स्पीड ऑफ अ कॉग व्हील इज डबल, कि अगर आप स्पीड को बेटा डबल कर दोगे. ठीक है, अब देखो अगर मैंने स्पीड को डबल कर दिया, यहाँ पे स्पीड को डबल कर देते हैं. ओके, लेट्स, क्या फ़र्क पड़ता है यहाँ पे, इफ़ स्पीड इज डबल्ड, ओके, देन मैंने क्या बोला था कि जो वेलोसिटी है वो डबल हो गई है. ठीक है, नाउ वेलोसिटी कितनी होगी, डबल. इट मीन की जो न्यू वेलोसिटी है वो v डैश है, वो पुरानी वेलोसिटी के डबल हो गई है. तो मैंने क्या किया, 2v इज इक्वल टू एफ डैश लैम्डा. एफ डैश क्या है बेटा जी, न्यू फ्रिक्वेंसी जो आएगी, लैम्डा जो वेवलेंथ है वो वेवलेंथ चेंज नहीं होती है, स्पीड के साथ वेवलेंथ का कोई रिलेशन नहीं है. ठीक है, वेवलेंथ के इंडिपेंडेंट है, तो जी लैम्डा हमने ऐसे लिखा है. तो वहाँ से हमारे पास क्या आएगी, इस v की वैल्यू आ गई एफ लैम्डा, एफ डैश लैम्डा बाई 2. तो जहाँ से मैं एफ डैश की वैल्यू निकाल रही हूँ, एफ डैश क्या आएगा, फिर जहाँ से v इंटू 2 अपॉन लैम्डा. इस सभी को बेटा सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो 640 आ रहा है. तो 640 को मैंने लिख लिया 2 इंटू 320. तो मैंने क्या देखा, निकाला था लास्ट हमने कि फ्रिक्वेंसी कितनी है बेटा 320. तो जहाँ पे क्या आ रही है 320 का डबल. इट मीन की जो न्यू फ्रिक्वेंसी है वो पुरानी फ्रिक्वेंसी के क्या है, डबल है. ठीक है, इट मीन की फ्रिक्वेंसी इंक्रीज़ हो रही है. अगर फ्रिक्वेंसी इंक्रीज़ हो रही है, इट मीन की जो पिच है, ठीक है, पिच क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है. अगर पिच इंक्रीज़ हो रही है, इट मीन की जो साउंड है वो क्या बन जाएगा, श्रीलर बनेगा और तीखा बन जाएगा साउंड. क्यों, बिकॉज फ्रिक्वेंसी के इंक्रीज़ होने से पिच इंक्रीज़ होती है, और पिच के इंक्रीज़ होने से जो साउंड है वो क्या होता है, श्रीलर बनता है. और साउंड, इट मीन की साउंड बिकम्स मोर श्रीलर. ओके, दिस इज़ द प्रैक्टिस प्रॉब्लम 4. okay, now practice problem 5. what is there, now the first practice problem is the sound waves of wavelength 1/3 meter has a frequency of 996 hertz. हमारे पास क्या है कि जो वेवलेंथ है बेटा लैम्डा, वो क्या है, प्रैक्टिस प्रॉब्लम 5 फर्स्ट सम, वेवलेंथ है हमारे पास 1/3 मीटर. ठीक है, और जो फ्रिक्वेंसी है वो है हमारे पास 996 हर्ट्स. कीपिंग द मीडियम सेम. ओके,
मीडियम सेम है, ठीक है, और जो फ्रिक्वेंसी है न्यू फ्रिक्वेंसी आ रही है, ठीक है, F1 ले लो जी, F2 जो आ रही है वो आ रही है आपके पास 1328 हर्ट्स। देन वो बोला है कि कैलकुलेट क्या करो, वेलोसिटी ऑफ साउंड कैलकुलेट करो एंड कैलकुलेट करो न्यू वेवलेंथ λ2 फाइंड करो, λ1 हमें गिवन है, ठीक है। तो हमने कैसे करना है जी, फर्स्टली फ्रॉम केस वन हम क्या करेंगे, v इज इक्वल टू क्या होता है बेटा f लैम्डा, तो हमारे पास v आएगा f1 λ1, ओके। तो f1 की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 996 हर्ट्स इंटू लैम्डा है हमारे पास 1/3 मीटर। तो जो कट जाएगा 3 1 द 3 3 3 द 9 3 3 9 3 2 द 6, वेलोसिटी आ गई 332 मीटर पर सेकंड आपके पास वेलोसिटी आ गई है, ओके। अब हमने निकालनी है न्यू वेवलेंथ। केस 2 में हमने क्या निकालना है, λ2 की वैल्यू निकालनी है, F2 की वैल्यू हमारे पास है 1328 हर्ट्स, ठीक है, और वेलोसिटी आपके पास है 332 मीटर पर सेकंड, ओके। तो ये कैसे आएगा फिर बेटा जी, नाउ वी नो दैट v इज इक्वल टू f लैम्डा f2 λ2, ओके। यहाँ से क्या आएगा, λ2 इज इक्वल टू v अपॉन f2, v की वैल्यू बेटा जी 332 अपॉन फ्रिक्वेंसी की हैगी है 1328, यहाँ पे आएगा मीटर। तो इसको बेटा सॉल्व करके आपके पास आंसर आएगा 0.25 मीटर। तो इट मीन की न्यू वेवलेंथ λ2 आ गई 0.25 मीटर की जो गिवन है बेटा, उसको हमने F1 F2, ठीक है, दो फ्रिक्वेंसी है F1 F2 न्यू वाली, λ1 पुराने वाली, λ2 न्यू वाली। तो वेलोसिटी इट मीन की जो फर्स्ट हमें गिवन है उससे हमने क्या निकाल लेना है बेटा, फर्स्ट से वेलोसिटी निकालनी है, और जो वेलोसिटी की वैल्यू आएगी वो सेकंड केस में हमने क्या करनी है, यूज़ करनी है बेटा, ठीक है। तो सेम एज आपने क्या निकालना है, सेकंड न्यूमेरिकल सेम टू सेम ऐसे ही करना है आपने, ओके बेटा, सेम टू सेम सेकंड न्यूमेरिकल डू इट, दिस इज योर होमवर्क, ओके, थैंक यू।